अस्सलाम वालेकुम। इस पॉडकास्ट का नाम है रिफ्लेक्शंस और मैं एक पाकिस्तानी डॉक्टर हूँ। किताबें पढ़ना मुझे पसंद है और अपनी गलतियों पर रिफ्लेक्ट करना is also one of my pastimes. I've made this podcast because there are some things that I am learning in life and I want to share them and take you guys on a journey with me. Well, there's not you guys yet, but I believe that there's going to be a lot of people who will listen to this. Inshallah. अपनी पहली podcast में I want to tell the story of why I deleted Instagram. So I was basically one of those kids जिनके बहुत ज़्यादा Instagram followers होते हैं. It does make sense because I was and have always been an extrovert. I usually collect like so many friends no matter where I go. I never realized it actively, but I took pride in the fact that I had so many Instagram followers. I mean, in hindsight, it was just 800 at the maximum. But for me, as a teenager who is part of Gen Z, that is a big deal. You would think कि एक doctor के लिए ये चीजें matter नहीं करती होंगी, but before I was a doctor, I was a med student. And before I was a med student, I studied in college. So obviously, I am also a part of the Gen Z जिसके लिए social media and especially Instagram has been the one way to connect with all of their friends. For me, this was my whole life. Cut to house job year. ये internship का वो एक साल होता है जो तमाम डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद क्लिनिकल प्रैक्टिस पहली दफ़ा सही मानों में शुरू करते हैं. मुझे अपनी पहली 2 पेशेंट्स आज तक याद हैं. I started सबसे मुश्किल यूनिट में which is general medicine and उसमें ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो टर्मिनली इल होते हैं यानी कि मोस्ट लाइकली उनका बचना मुश्किल होता है. However, I am honored to say कि जो मेरी पहली मरीज थी उनका नाम शुक्रिया बेगम था. Now Shukriya Begum was this jolly woman who I noted the first day I saw her कि उनकी शक्ल मेरी नानी अम्मा से मिलती है. मैंने उनको ये बताया और उन दिनों रमज़ान था. She told me that she will pray for me and pray she did. I remember like every single time she would see me passing by, she would stop me and tell me, बेटा मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ. You're so kind. You're such a nice doctor. Meanwhile, I in my head was like, I have no idea what's going on. You guys might be thinking कि मेरे 2 पहले मरीजों का Instagram से क्या relationship है, but I'm gonna tell you super quickly. So let me just give you a rundown of what happened. My first patient was the most amazing patient that anyone could ever ask for. Shukriya Begum को ज़्यादातर blood pressure का मसला रहता था, लेकिन luckily उनका मसला ठीक हो गया. Within 5 to 6 days she got discharged और वो मेरे से इतनी खुश थी कि आपने मेरा बहुत अच्छा इलाज किया डॉक्टर साहिबा. I was looking at her face dumbfounded because मेरी अभी हाउस जॉब शुरू हुई थी और मुझे लिटरली ब्लड सैम्पलिंग करनी भी नहीं आती थी. मैं सोच रही थी कि मैंने क्या किया है, लेकिन बाद में I realized it's very much about our attitude and I think उनको मेरा behavior उनके साथ अच्छा लगता था. खैर, I got really happy, but I did not think कि मैंने कुछ achieve किया. My second patient that I remember is the exact opposite of this. उनका नाम राबिया बीबी था और वो mentally ठीक नहीं थी. उनको इतने कोमॉर्बिड्स थे. शी हैड हाइपरटेंशन, उनको एनीमिया था, उनको साइकोलॉजिकली वो ठीक नहीं थी. उनका एज भी बहुत कम रहता था जिसका बेसिकली मतलब ये है कि उनकी बॉडी में खून नहीं था. शी वॉज नॉट दैट ओल्ड, अराउंड 50 years old. एंड आई रिमेंबर जब मैं उनको देखती थी मैंने उनके इतने काम किए, सारे मेडिकल कंसल्ट्स कराए, साइकाइट्री, न्यूरोलॉजी सबको दिखा दिया. वो बोल भी नहीं सकती थी. This is hard for me to talk about, but मुझे याद है कि उनके कामों के चक्कर में मेरा पूरा दिन गुजर जाता था लेकिन काम ख़त्म नहीं होते थे. और जब कोई काम स्टक हो जाता था तो मुझे लगता था कि मेरी गलती है. जैसे किसी सीनियर कंसल्टेंट ने उनकी फाइल में लिख दिया कि इनका एनेस्थीसिया रिव्यू कराएं फॉर सर्जरी. किस ऑपरेशन के लिए लिखा गया था आई हैव नो क्लू बिकॉज उनको कोई ऐसा मर्ज नहीं था जो सर्जरी के जरिए ठीक हो सका. बट कंसल्टेंट्स लाइक टू बी केयरफुल एंड सो I did not know that they were just being careful. I remember मैंने anesthesia department के इतने चक्कर लगाए कि किसी तरीके से मुझे पता चले क्या होगा. And they told me कि इनका तो HP इतना कम है कि इनको anesthesia दिया ही नहीं जा सकता. I came back and I asked the family कि इनको क्या हुआ है. तो मुझे उनकी बैक स्टोरी पता चली कि apparently इनके हस्बैंड बहुत अब्यूसिव थे और वो नशा करते थे. उन्होंने इनके बच्चे उनको डिवोर्स दे दी और इनके बच्चों को कस्टडी में ले लिया और पिछले 20-25 साल से वो उसी सख्ते की वजह से इतनी बीमार हो गई हैं. Rabia Bibi did not last until the end of my general medicine rotation. I still remember the day that I walked in and I was told that she had expired. उनकी family, I remember them standing around her bed और वे सब राबिया बीबी की शक्ल देख रहे थे. And they were not
they did not look surprised. It was almost like उनके attendants सब बस कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे. शायद वो उनका इतने सालों से ख्याल रख रख के थक गए थे. हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे सीन्स नज़र आते हैं which are very scary. कई दफ़ा मरीज़ जब अपने इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके रिश्तेदार खासे हैरान और परेशान नज़र नहीं आते. शायद इसलिए कि वो काफ़ी अरसे से बीमार होते हैं तो everyone is expecting it. It does not seem valid to me, but I'm sure it must feel valid to the ones who go through that. ये वो दो मौक़े हैं जिन पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी is about a lot more than just Instagram pictures. I mean, Rabia Bibi was not on Instagram and neither was Shukriya Begum. लेकिन उन दोनों ने मेरी ज़िंदगी पे जो इम्पैक्ट क्रिएट किया उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंसानी ज़िंदगी और यहाँ पे होने का मकसद is more than just the amount of likes you get. You can delude yourself into thinking that you're creating a difference by sharing positive quotes on Instagram or getting a lot of likes. लेकिन आप अपने आप से भी झूठ बोल रहे होते हो और एक सोशल लाई में पार्टिसिपेट कर रहे होते हो. हम सब कमेलियंस की तरह हैं. इंस्टाग्राम पे हम सब अपनी लाइफ के वो वर्जन्स शेयर करते हैं जो शायद रियल भी ना होते हो. Everyone edits their pictures and thinks for hours before selecting the music that they're gonna post on their Instagram story. I think that is so unhealthy because हमें लगता है कि it matters, but in the grand scheme of things, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर राबिया बीबी और शुक्रिया बेगम जैसे इंसान एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ अपने क्लोज सर्कल में कुछ ज़्यादा लाइक्स मिल जाना या 3-4 लोगों की नज़रों में इम्पोर्टेंट कंसिडर हो जाना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना किसी की ज़िंदगी में असल में इम्पैक्ट क्रिएट करना बड़ी बात है. I remember when Rabia Bibi died, I blamed myself for her death for the longest time. It feels funny in hindsight, but it's also a very emotionally loaded topic that, to be really frank with you, I did not realize I would find it this difficult to talk about it. But it is difficult. I remember I blamed myself because मुझे लगा कि उनका ऑपरेशन नहीं हो सका इसलिए उनकी डेथ हो गई. सच ये है कि उनको इतनी सारी बीमारियां एक साथ थीं जिनको हम मेडिकल टर्म्स में कोमॉर्बिड्स कहते हैं कि उनका बचना वैसे ही मुश्किल था और इस हद तक दुश्वार था उनका बचना कि उनके ख़ानदान वाले जो उनकी ख्याल करते थे, टू बी रियली ऑनेस्ट, वो उनका ख्याल नहीं करते थे. हम सब डॉक्टर्स इस बात में बहुत नाराज़गी का इजहार करते थे उनसे कि आप इनका ख्याल सही से नहीं रखते, ना इनकी हाइजीन का ना किसी और चीज़ का. मगर nevertheless they were her family members. उनका बचना इतना मुश्किल था कि उनके family members को भी इस बात का अंदाज़ा था. और जिस दिन she passed away, none of them looked surprised. I wanted to share this story because it's in stark contrast with the idea that some social media platform like Instagram matters. And this is one of those things that you can show but not tell. I could basically make someone else go through the same experience that I went through. And I realized the hard way it was not my fault. But जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ऑब्वियसली मेरी गलती नहीं है, कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका बचना बहुत मुश्किल होता है और ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला तो वैसे भी अल्लाह करता है. तो ये ज़िंदगी के उन बड़े लेसन्स में से एक है जो अगर आप एक टीनेजर को दोगे उसको उन हकीकतों का एहसास हो जाएगा जो शायद उसने पहले कभी प्रोसेस ही नहीं की. और मेरी तो दुआ है कि कभी किसी को डायरेक्टली इतने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से ना गुजरना पड़े बिकॉज इट डज टेक अ लॉट ऑफ इमोशनल टॉल ऑन यू. उन दिनों तो जनरल मेडिसिन की रोटेशन चल रही थी और ये उन रोटेशंस में से एक होती है जिसमें आपके पास सांस लेने के लिए रुकने का भी वक्त नहीं होता. यू आर जस्ट रनिंग अराउंड बिकॉज एक पेशेंट एक्सपायर होता है तो साथ वाला क्रिटिकल हुआ हुआ होता है और आप उसके काम शुरू कर देते हो. दैट्स द सेम थिंग आई डिड जिस दिन राबिया बीबी एक्सपायर हुई थी. मगर उस दिन मुझे एहसास हुआ कि असल ज़िंदगी तो ये है, दुनिया तो ये है, इम्पैक्ट तो इसको कहते हैं. It doesn't matter how pretty your pictures are. It doesn't matter what your 500 friends think about you or the 300 acquaintances you know from university or school think about you. What matters is what's happening in the real world. और जब ज़िंदगी आपको झंझोड़ती है और आपको ऐसी चीज़ें दिखाती है जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होंगी और आपको उन चीज़ों की ड्राइवर सीट में डाल के कहीं पर रिस्पॉन्सिबल ठहराती है और आप अपने आप को बेबस महसूस करते हो क्योंकि इस तरह के मामला इंसानों की दस्तरस से बाहर होते हैं. तो उन्हीं लम्हाते ज़िंदगी में आपको एहसास होता है कि सच क्या है और झूठ क्या है. और ये सब जो हमें नज़र आता है ऑनलाइन, ये सब एक सराब है. It's a mirage in a desert. We're looking for the wrong things in a world where the right things, you can only hope you don't see them or have to face them. Because
they're some of the most difficult experiences a person can have, but they're also the things that are the most real. इस सब के बाद मुझे एक्सटर्नल और इंटरनल वैलिडेशन का भी बहुत स्टार्क डिफरेंस फील हुआ. इंटरनल वैलिडेशन ये होती है कि हम अपने आप को काफ़ी समझें, जबकि एक्सटर्नल वैलिडेशन ये होती है कि हमें जब दुनिया काफ़ी समझे तो तभी हमें तसल्ली मिले. मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि इतने सालों से जो मैं वैलिडेशन रिसीव कर रही थी वो असल में मेरी थी ही नहीं. इट वॉज नॉट माई बर्थ राइट. एक्चुअली नो वैलिडेशन इज़ अ पर्सन's बर्थ राइट, बट इट वॉज नॉट समथिंग दैट आई डिज़र्व्ड. लेकिन जो वैलिडेशन मुझे तब मिली जब शुक्रिया बेगम ने मुझे शुक्रिया कहा, no irony intended, और जब राबिया बेगम passed away, those instances when I realized actually मैंने वो सब किया जो मैं कर सकती थी और उस बात का सुकून, those are the things that gave me internal validation, that made me realize like I'm a member of society that actually matters. I want to carry this lesson with me for the rest of my life, and it is one of the biggest reasons why I decided to start a podcast. I want to talk about real experiences outside of the facade that is social media, and I want to hold on to these lessons that I'm learning for my own sake, so that I can come back to these and maybe derive some sort of a hindsight from them. Thank you so much, guys, for listening to the first episode of my podcast. I am a Pakistani doctor, a reader, a work in progress, and in every episode, we will discuss how to learn to hear yourself in a world that never stops talking. Allah Hafiz for today.